our side of the story. Every story has two sides. Therefore, today we would like to share to you our side of the story. We are very deeply anguished and distressed to inform about yesterday's incident wherein two of our sincere health professionals were physically assaulted by the patient attendant. We were very much aware that such negative sentiments were brewing in the public, in the various social media, various social forums, but we do not anticipate such kind of a assault on the frontline healthcare workers. Therefore, we have invited today all of you to share our side of the story. Yesterday, for no reason, no fault of theirs, one senior resident and one junior resident from the Department of Pediatrics were assaulted. One sustained grievous injury. And let me reiterate for a fact, one of the junior resident who was assaulted was a non-localite. He had come to do his residency, that is DNB residency in pediatrics, all the way from Telangana. So it was very, very sad and gave us a deep anguish and demoralized all the working staff, including the doctors, nurses, and all other allied health professional workers in the hospital. Now, regarding yesterday, some of the media houses, आप लोग ने बताया है कि आप लोग गुस्से में हैं, आप लोग हम लोग का ट्रिम्स अथॉरिटी और फैकल्टी से कि आपने हम लोग कल why we did not allow you yesterday to basically highlight the incident at TRIMS. Let me reiterate, we are very appreciative of your effort. In fact, the very fact that we have called you is to seek your help. You being the fourth pillar of democracy, we need your support, we need your guidance. A lot of negativity has come into the social media, and we are not even sure how it started, because we were thinking we are doing good things for our state. Therefore, we request and ask your help in bridging that trust deficit that has happened. Like I said, it may be because हम लोग का गलती से भी हो सकता है. It may be because of some bad elements in the society जो social media में रह के हम लोग का negative effect हुआ है. But from the social media हम लोग को ये तो पता चलता है कि a huge trust deficit has occurred between the public and between the healthcare workers at TRIMS. And therefore, it is very pertinent, I reiterate again and again, we all at TRIMS administration request your support in bridging that gap so that the people of Arunachal Pradesh, the poor, sick, needy people of Arunachal Pradesh start to have faith in the medical system, start to have faith in the healthcare delivery services that is prevailing at TRIMS. तो फिर आज जैसा कि I want to tell you again, कल का तो we are very, very sorry that we could not allow you yesterday for two main reasons. एक तो ये था कि we were actually literally scared. दो अटैक हुआ है तो हम लोग ने सोचा है कि और भी अटैक आ सकता है, तो we wanted to stay together, एक जगह में हम लोग बैठ के प्रोटेक्ट, एक दूसरा को प्रोटेक्ट करने के लिए. और हम लोग, आप लोग तो कोई तो बोलेंगे कि हम प्रेस वाले हैं, लेकिन हम लोग को तो पता भी नहीं होता कौन प्रेस वाले हैं. कभी कभी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन सच अ टेंस सिचुएशन टू फाइंड आउट और टू नो कि कौन प्रेस वाले हैं, कौन नॉन प्रेस वाले हैं. एंड दैट वाज अ रीजन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स from the further physical assault by the public or by so called the patient जो हम लोग से गुस्से हैं. इसलिए we had to refrain the press and the media to come inside the hospital campus, and we are very sorry for that.
And number two, our doctors, especially the junior doctors who are the frontline workers, were very agitated, understandably so. They were very emotional. तो therefore हम लोग सोचा है कि अगर आप लोग आएंगे तो हमारे कोई डॉक्टर शायद कोई इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दे देंगे, कोई इनअप्रोप्रिएट बात बोलेंगे आप लोग को, that would further tarnish the image of the institute, जो already, like I said, trust deficit already बन चुका है. तो therefore we did not want that situation to flare up and further tarnish the image of TRIMS. इसी दो reasons का वजह से we did not ask you, or rather allow you to come inside and cover the incident that happened, the unfortunate incident that happened yesterday. Before I complete the press statement, once again, I would like all of you to know the very fact that we need your support. इतना negative sentiment हो चुका है public पे. It is your responsibility, my responsibility, our responsibility. It's a collective responsibility of everyone to bridge that trust deficit. ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए. आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट increase your responsibility to remove the negative sentiment, negative feedback that has crept into the minds of the public. And we assure you as TRIMS faculties, as TRIMS administration, that we are doing our level best to the best of our capacity, skill and knowledge to provide the kind of services that is appropriate, the kind of services that is expected of us. And we will continue to do so despite all the trouble, despite all the negative sentiments that we have, that is already brewing up in the public forum. So with this, I think I will not take much of your time. If you have any queries, or if you have any questions regarding this thing, you may, we can proceed ahead. Sir, over the last 2-3 months, I think this is the second incident which occurred yesterday. Can someone put off this one? Very soon. Before I continue, I would just like to introduce myself. I'm sorry I did not introduce myself. I am Dr. Wangju Somnyan. I am the Deputy Medical Superintendent number 1. And to my right is Dr. Rejim Ronya. He is also the Deputy Medical Superintendent number 2. And the others are all representatives from various departments. Yes, please. I mean, months back, there was just Tau attack at SEPA. Yes. But I think after that incident, the government has taken a security review of all the medical facilities. So, do you have, security apparatus here around streams and around your medical facilities to prevent such incidents? Yes, a very pertinent question. We do have, in fact, like you said, after there was a Supreme Court order as well regarding the very same. But yes, coming to our local incident that happened in SEPA, we had in fact reviewed the security situation. We have, in fact, after that very incident, we have set up the police outpost, which is, you may have seen, just outside the emergency and the trauma department. And at the same time, we also have security personnels. We have outsourced the security to one outside agency, and we have about 70 security personnel, private security personnel. But I say 70 is very, very less for providing security within the hospital and within the premises of TRIMS, because 70 sunne mein bada hai 70, but 70 to they cannot be employed all the time. They have to be in shift. At the maximum that we can do is 3 shifts. तो just imagine करो कि आप गेट भी हमारे पास थोड़ा 4-5 है, हर गेट में डालने से हो जाता है. वार्ड हमारे पास इतना ज़्यादा वार्ड्स है, OPDs है, OTs है, ICUs है.
SNCU है, ICCU है, academic block, ये तो hospital का सिर्फ है. We have the academic block, director's office, we have the lecture halls. So basically, yes, we have already asked and placed in front of the government of Arunachal Pradesh to provide us more security personnel. So Yes, the file is on the way, and we will intimate to you when. And we have, on priority basis, we have asked the government to increase, to give us another 80. So totally, we have at least 150 security personnel. So talking about trust deficit, as you are seeking help from the state media to breach the trust and Absolutely, among absolutely. doctor fraternities, specific teams, and public. So I was reading some of your doctor fraternities comments expressing anguish over state media, saying that we bent, doctor fraternity on a bad light. So do you think? I mean, the narratives now being created on social media against the doctor fraternity. Part of the state media is responsible for that narrative. A very pertinent question. It is the opinion of the doctors' fraternity that, to a certain extent, because all of us know we cannot be blind to what is happening in the social media. There will be few black ships everywhere in every organization. And similarly, I do believe कि आपके मीडिया हाउसेस में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस में कुछ कुछ हाउसेस है जो without taking the due process of law, without taking the due legal proceedings in preview, आप लोग ने judgment दे देते हैं. To a certain extent, अभी डॉक्टर्स को क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ है. कोर्ट आप लोग है, जज भी आप लोग है. Like I said, please forgive me. I am not telling everybody, but few individuals from the media houses are doing it. And like I said, all of us know who are those people, but we have no hard feelings against them. We just request him or her to just retrospect power. Despite the deficit in human resource people, we are still trying to give our best. Of specific steps that we will be trying to implement is, number one, we are also planning to strengthen and beef up our media house, our public relations. We will depute a public relations officer who will interact with the media, who will interact with the on what frequency that individual will be interacting with you, number one. And number two, we have decided to provide help desk in the various OPDs. So we will have a help desk, and we will depute one personnel, healthcare personnel, who will help with the needy patients who need help or directions in the hospital. And thirdly, we will be putting up very soon a complaint box as well with a mobile number. So all the complaints that the public have, they can address to us anonymously, put their grievances in the complaint box, and we will also provide a mobile number जहाँ पे anonymously or with your name you can put up your complaints. And I can assure you from the administration side that we will look into the matter, because we need seriously to breach that trust gap. And I'm very happy that you have asked that question. And yes, I do agree. Yes, for the trust deficit that have occurred, it is, we cannot blame only the other side of the people. Probably the fault also may lie with us. So therefore, we will introspect. In fact, as a DMS, I had called a meeting 2 days back to try to imbibe this ethical principles on the HODs and various faculties. But because of this unfortunate incident, that meeting had to be cancelled. And within the coming days, we will ask all the departmental HODs, all the faculties, all the nursing staffs and the nursing superintendents to introspect and improve our attitude, improve our communication skills, so that we do not appear as criminal or as monsters that we are being portrayed in the public social media as of now. ऐसा डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली हम लोग भी कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर जिसको हम लोग भगवान का रूप में मानते हैं, नेक्स्ट टू गॉड,
क्योंकि जब हमारा सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, हम लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई आए हमको बचाए। उसमें से भगवान को याद करते हैं, उसके बाद में जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब जो बिहेवियर होता है कभी-कभी, कारण होता है, देखिए काफ़ी साल हो गया ट्रिम्स का चला हुआ, और True. मैं शायद जर्नलिस्ट होता होगा या और भी कोई किसी ने कोशिश किया होगा कि कंप्लेंट बॉक्स को रखो बोल के। मैं आप लोगों को भी काफ़ी बार पर्सनली भी मिल के भी बताया, लेकिन आज आप लोगों को याद आया सर, इसलिए हमको भी दुःख है, लेकिन फिर भी खुशी है कि आप लोग उसके लिए तैयार हो गए। दूसरा था ऐप्स आप लोगों ने डेवलप किया, क्या ऐप्स आप लोगों को फ़ायदा आ रहा है? ये एक नंबर है। मैं 3-4 क्वेश्चन को डाल देता हूँ, आप रिप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद देखा गया कि सर यहाँ जब लेबोरेटरी का टेस्ट का रिजल्ट लेने के लिए लोग खड़ा रहते हैं, 150-200 लोग लाइन में रहते हैं, वो तो आप लोग उसको खुद देख करके कर सकते हैं। कोई बताए, कोई कंप्लेन लॉन्च करे, कोई वीडियो बना के डाले, वो नहीं रुकना चाहिए था। आपका ट्रिम्स का अथॉरिटी काफ़ी बार लिफ्ट में फँसा 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा। कोई लोग तो रात को 12-1 बजे भी फँस के बैठा, गार्ड नहीं मिला, दूसरा गार्ड निर्दयी से आके खोल के निकाला। तो ऐसा सिचुएशन होने मत दीजिए ना सर, यही तो आउटबर्स्ट है। ट्रीटमेंट में कहाँ कमी है? कोई ट्रीट आप लोग एक से एक, हम लोग जानते हैं कि हमारा अरुणाचल में पोटेंशियल का कमी नहीं है। एक से एक अच्छा डॉक्टर है, शॉर्टेज ज़रूर है। हम जानते हैं कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट लोग काफ़ी नर्सेस और डॉक्टर दिया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस यू आर डूइंग गुड जॉब। लेकिन छोटा-छोटा चीज़ है जो आप लोग नहीं देख करके, पार्किंग का समस्या है। काफ़ी बार पार्किंग के लिए आप लोगों का डॉक्टर का बीच में झगड़ा हुआ, स्टाफ लोगों का बीच में झगड़ा हुआ, गार्ड का साथ झगड़ा हुआ, पब्लिक का साथ झगड़ा हुआ। ये छोटा-छोटा चीज़ जो है मिनिमाइज़ करने से ट्रस्टवर्थी क्यों नहीं होगा? ये झगड़ा झंझट क्यों आएगा? यही हमारा बोलना है। और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि ट्रिम्स को कभी हम लोग नहीं चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन अरुणाचल प्रदेश इन द हेल्थ सेक्टर। टाइम एंड अगेन वी आर एप्रिशिएटिंग। तो इसी सबको एक आप थोड़ा-सा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए आप। Thank you so much for appreciating our work, but at the same time telling us regarding the deficiencies and lacunae that is existing in our hospital. Yes, we are very much aware कि हमारे पास डिफिशिएंसी तो ज़रूर है, जैसा कि आपने बोला है, आपने बताया है कि so much of line है. Ultimately, it boils down to manpower. हमारे पास इनफैक्ट कल हमारे पास मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ भी था, तो व्हेन वी उसमें इनफैक्ट सेक्रेटरी डिस्कशन के बाद सेक्रेटरी साहब ने भी यही भी बोला है कि आप लोग इतना बेड 500 बेडेड हॉस्पिटल है, हमारे पास हार्डली 200 नर्सेस है जो वर्किंग नर्सेस, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और हर नर्स जैसा कि आपको बताया है वो तो 8 आवर शिफ्ट में होंगे, तो यानी कि अगर 200 में होने से डिवाइडेड बाय 3 वी हैव हार्डली 60-70 एट एनी पॉइंट इन टाइम। 60-70 nurses to run ICUs, to run SNCU, to run ICCU, to run the wards, at the same time look after the OPDs. It is very, very difficult. Therefore, in fact, a directive they have been unofficial, they have told us to basically downsize the number of beds that we are operating. So from 500, most probably we don't have a choice unless we are provided with the adequate manpower, that is a nursing staff. It would be we would be downsizing to a minimum about maybe 300 or maybe 290. But at the same time, I take this opportunity to thank our honorable health minister and the the bureaucrats, especially our health secretary Vivek sir. They have been with us in this hour of turmoil and strife. They have been with us yesterday without even having lunch. They have tried to tell us their side of the story, how they helping us in controlling the public sentiments against us. So I take this opportunity to thank the honorable health minister and the health secretary as well. But yes, regarding your thing, complaint box, we will definitely do it. Regarding the app, yes, we are in the work always. The streams, oh no, यहाँ पे तो ऐसा है कि everything is working because it's still not incomplete. You can see the building, the road, even the campus is not complete. So we cannot give you a surety. It's always work in progress. The apps are also work in progress, but definitely what you suggested is a very good option. We will have to use the help of technology to make the experience of the visit of the patients who are visiting a hospital more comfortable. एक इसका आंसर Yeah, please, just 1 minute. सेंट्रल ये तो
लेबोरेटरी को ये कर रहे हैं वो ना, 24 hours कर रहे हैं। Yes, and then to add to whatever I have said, to जो sir ने जो बताया जो पूछा है, the laboratory regarding the laboratory services, we are also in the process of providing 24 hours services, sophisticated services in addition to what is already running. That is by ASR. So in addition to ASR lab, we are in the process of providing 24 hour services from our central lab, which will be headed by the Department of Pathology, Biochemistry, and Microbiology. आपके ऐसा ट्रेनिंग सर्विस स्टेशन आपको तो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कल का इंसिडेंट उसके बारे में अभी तक ओवरऑल हम दूसरे साइड से तो सुन रहे हैं लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेशन आपकी तरफ से पता नहीं कि एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या हुआ था तो वो हम जानना चाहेंगे ब्रीफ में कि कल का इंसिडेंट Okay, so you want just want to know the yesterday story, or you want to know the back story जिसका पीछे से हुआ है? बता दीजिए क्योंकि कल का जो हुआ था Okay, कल का हम बता देते हैं उसके बाद कल. So you want the side the main story, background story as well. Background story, how that is solved led to. Okay, so the what background would you want to this thing? Dr. Likha Suraj, he is the faculty Likha Raju, sorry, Likha Raju, he is the faculty from the Department of Surgery, where the background story happened. Let him narrate the background story, and thereafter the yesterday's event I shall tell you. Please. Good morning, everyone. My name is Dr. Likha Raju. I am an assistant professor in the Department of General Surgery. So I'll give a brief. So introduction था for everyone easy के लिए तो अभी हिंदी में बताते हैं. तो कल जो इंसिडेंट हुआ है वो कैसे शुरू हुआ मतलब फ्रॉम द जब से पेशेंट को देखा तो थोड़ा सा समरी बता देगा. तो जो हम लोग पेशेंट था 17 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है. तो 19 अगस्त को ओपीडी में आया. तो ओपीडी में कुछ कंप्लेंट लेके आया. तो कंप्लेंट था कि पेरीएनल स्वेलिंग. ये तो पेरीएनल रीजन में एक स्वेलिंग है. तो उसको क्या कि यूजुअली वैसा स्वेलिंग होने से फिर उसको हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करते हैं. प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिन दैट पार्ट. ऑन एग्जामिनेशन तो हम लोग को मिला कि एक एनएल टैग जिसको हम लोग सेंटिनल फाइल होता है. तो सेंटिनल फाइल तो वी डिवाइड करते हैं कि 6 o'clock 12 o'clock ऐसे डिवाइड होना. तो 12 o'clock में पीछे साइड 12 o'clock में था. तो उसको ऐसा था कि वो एरिया देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं था. तो उसको हमने क्या किया कि वो एडवाइस पेशेंट को कि 2 ऑप्शन दिया. एक तो आप सर्जिकल कर सकते हैं या बिना सर्जरी का भी आप दवाई ले सकते हैं. तो छोटा चीज़ होने से क्या होता है हम दवाई से यदि पहले ट्राई तो लेकिन पेशेंट पार्टी दे ऑप्टेड के नहीं सर इसको आप सर्जरी ही करा दो तो वही बेस्ट रहेगा. तो फिर क्या कि उसको हमने तो व्हेनेवर पेशेंट ऑप्ट फॉर सर्जरी तो हम उसको एक ऑपरेशन का डेट देते हैं. ऑपरेशन डेट देता है डेट ऑफ एडमिशन. तो पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन था 28 अगस्त को. तो 28 अगस्त को करना था. सो उसको हमने पूरा रूटीन इन्वेस्टिगेशन भेज दिया. मतलब ऑपरेशन से पहले क्या क्या टेस्ट जरूरी होता है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ भेजा. उसके बाद सिंस 28 को था तो हमने क्या किया थोड़ा एडवांस में उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा लिया. तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ कि बेहोश करने से पहले जो चेकअप होता है. सो 25 को उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ एंड शी वाज फिट फॉर सर्जरी. फिर उसके बाद पेशेंट को आना था 27 को बिकॉज एक दिन प्रायर हम पेशेंट को एडमिशन करते हैं. 28 को डेट था तो 27 को एडमिट करना था. बट पेशेंट डिडंट कम. पेशेंट आया 28 का ऑन द डे ऑफ सर्जरी सुबह आया. तो हमने क्या किया सिंस पीएससी तो हो चुका था लेकिन सिंस ओटी लिस्ट में नहीं था बिकॉज ऑपरेशन लिस्ट में डालना होता है उसके हिसाब से सिस्टर्स लोग अपना सामान रेडी करते हैं. तो ऑपरेशन में लिस्ट नहीं था तो उसको हमने कैंसिल करवाया. फिर एक नया डेट दिया. तो नया डेट दिया 4 तारीख. तो शी वाज टू कम ऑन 4 तारीख को. वो भी सिंस उसका पीएससी हो चुका था तो उसको 4 तारीख को सुबह आराम से आना था एडमिट कराने के. तो लेकिन पेशेंट 4 तारीख का ऑपरेशन डेट था. 3 तारीख को आना था. तो 3 तारीख का सुबह यूजुअली हम 10 बजे बुला रहे थे पेशेंट को. तो 10 बजे पेशेंट नहीं आया. पेशेंट केम अराउंड शाम का 6:30 को आया 3 तारीख को. तो यूजुअली बोलने से वो टाइम नहीं होता है क्योंकि हम लोग ऑपरेशन डेट भी ओटी लिस्ट बनाना होता है.
OT लिस्ट के हिसाब से OT लिस्ट OT में देगा, फिर सिस्टर विल अरेंज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी। फिर हमने सोचा चलो कैंसिल वाला केस है, तो हमने OT लिस्ट में डाल दिया। फिर पेशेंट वॉज प्लान ऑन 4 तारीख को, फिर उसको ऑपरेशन रूम पे लेके गया। तो वो ऑपरेशन वाज टू बी डन अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल जब भी कुछ चीज़ जनरल एनेस्थेसिया में या स्पाइनल एनेस्थेसिया, वी कॉल इट एज मेजर सर्जरी, क्योंकि अंडर स्पाइनल में हो रहा है। अंडर स्पाइनल में बहुत पेनफुल रहता है एरिया में, तो उसको अंडर स्पाइनल में लिया। फिर ऑपरेशन ज़्यादा देर नहीं चल, 20 to 30 मिनट्स जो सर्जरी था। फिर उसको ऑपरेशन करने के बाद हमने सामने में एनेस्थेटिक का रूम है, एनेस्थेसिया का रूम, वो है पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन रूम। और सीधा ऑपरेशन करने के बाद हम पेशेंट को वार्ड लेके नहीं जाता, उसमें 10-15 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर वी हैड रिव्यूड विद एनेस्थेसिया, फिर हमने देखा एनेस्थेटिक देखा, फिर उसके बाद जैसे ओके, फिर हमने उसको वार्ड में शिफ्ट कराया। तो पेशेंट was shifted to ward around 2:20 आफ्टरनून का, जब 2:20 PM को शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद 2:20 को PM को शिफ्ट हुआ, होने के बाद अराउंड 2:25 क्या हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, तो उसने एक इंजेक्शन दिया। तो इंजेक्शन वाज यूज टू गिव बोलस इन स्टेट, मतलब स्टेट मतलब एक ही टाइम, वन टाइम के लिए ही एडवाइस था। तो इंजेक्शन था, आई थिंक सबको पता चल गया होगा। इंजेक्शन वाज ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम IV स्टेट डोज देना था उसको, मतलब एक टाइम के लिए देना था। उसको दिया, तो देने के बाद जैसे इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा डॉक्टर ऑन ड्यूटी थोड़ा इस तरफ दूसरे को देखने गया, तो अटेंडेंट आके बोला कि सर आके देखिए, पेशेंट थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो। तो उसको अटेंड किया, एंड लकीली एट दैट टाइम वी वर ऑल देयर एट दैट टाइम, जब शुरू हो रहा था। तो वाइटल्स वगैरह चेक किया, BP फॉल हो रहा था, पल्स कम होने लगा था, प्यूपिल ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। तो विथ फाउंड दैट इट वाज एन एनाफाइलेक्सिस, जो उसका रिएक्शन है। तो हमने जो नेसेसरी उस टाइम पे जरूरत है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम 2-3 मिनट्स ही हुआ कि हमने ऑक्सीजन लगाना शुरू किया। वी गिव ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो उस समय पे करना था किया। फिर वी कॉल द एनेस्थेसिया, यूजुअली क्योंकि पोस्ट एनेस्थेटिक है, तो in that case so we call the anesthesia came around within 5 minutes from the OT, क्योंकि ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग बहुत दूर है, OT से आना और यहाँ से आना। तो we call the anesthesia, they arrived, और we are thankful to the anesthetic department कि they came in time, around within 5 minutes they came, they intubated the patient। यहाँ से पाइप लगाया, क्योंकि ऐसे टाइम पे खुद से सांस लेने में तकलीफ होता है, तो पाइप लगाया, इंट्यूबेट किया। उसके बाद वहाँ पे जो नेसेसरी चीज़ें, सलाइन वलाइन लगाना, कैनुला एक्स्ट्रा लगाना, वो किया। उसके बाद पेशेंट वाज शिफ्टेड टू ICU। तो ICU में पेशेंट इंट्यूबेट करने के बाद ICU में पेशेंट को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद इन द ICU आफ्टर इंट्यूबेशन वाइटल्स हमने देखा, वाइटल्स सब विद इन नॉर्मल रेंज में था, बट इतना पेशेंट इतना भी नहीं था कि उसको इमीडिएटली एक्सट्यूबेट कर पाए। तो अंडर ओवरनाइट पेशेंट को हम एक्सट्यूबेट करके रखना पड़ा in the ICU by the help of anesthesiologist. So on the next day, 5 तारीख को अराउंड 9:40 AM में, तो सब कुछ देखने के बाद फिर एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि विल एक्सट्यूबेट, अभी चलो हो गया, अभी टाइम है कि पाइप को निकाल देना। तो पेशेंट वाज रेस्पॉन्ड कर रहा था, तो पाइप को निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेशेंट को कुछ फ्लूइड्स वगैरह कुछ थोड़ा अलाउ किया। फिर भी ऑब्जर्व करने के बाद फिर कार्डियोलॉजिस्ट आया, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डिपार्टमेंट आया, फिर न्यूरोलॉजिस्ट आए। सो वी कॉल ऑल एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एनेस्थेटिक, आई डिपार्टमेंट एंड टू द न्यूरोलॉजिस्ट। तो सब ने आया, सब एसेस किया। तो कार्डियो में भी कार्डियो वाले ने कुछ इको वगैरह किया, उसमें कुछ डिजीज मिला, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन चलाया। फिर आई वाले उस टाइम पे आया। सो एट दैट टाइम पेशेंट डिडंट हैव एनी कंप्लेंट ऑफ विद आई प्रॉब्लम। तो न्यूरोलॉजिस्ट का हमने बुलाया, फिर जो मेडिकेशन जरूरी था वो शुरू किया है। फिर इसके बाद ऑन द डे ऑफ 8 तारीख को, जो क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल एवरी डिटेल, आप सबको इंसिडेंट को पता हो ही गया। तो ऑन द डे ऑफ 8 तारीख को फिर क्या हुआ, पेशेंट कंप्लेंट की दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ दिख नहीं रहा है।
तो उसमें भी हमने फिर आवर टीम कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट आई, दे वर ऑल मॉनिटरिंग, हर दिन विजिट करा। फिर हमने लेकिन न्यूरो को फिर दोबारा बुलाया, न्यूरो मैडम भी आया, मैम भी देखा, फिर आई वाला भी देखा, फिर बोला कि उस टाइम पे ऐसे स्पेसिफिक कुछ ऑब्वियस कॉज तो दिख नहीं रहा है। तो लेकिन फिर न्यूरो वाले भी बोला कि न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो करना है, बट एट दैट टाइम तो वो इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे है कि वो पेशेंट को थोड़ा मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने बाकी जितना ज़रूरत इन्वेस्टिगेशन हो सब किया है, बट एट दैट टाइम जो थोड़ा बाद में कर सकता था आफ्टर द पेशेंट गेट स्टेबल, तो उसको हम अभी तक थोड़ा रोकते रखा है आफ्टर पेशेंट फुल्ली रिकवर होने को। सो अंटिल नाउ द पेशेंट इज स्टिल रिकवरिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कुछ टेस्ट करना था, एंड वी आर फर्दर विल डू द टेस्ट बट once the patient is stable. And regarding the drug reaction, we have already जो डिपार्टमेंट वाला जो कंसर्न डिपार्टमेंट है तो हमने इन्फॉर्म किया है, मैडम को भी इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करके द पार्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रहे हैं। So regarding this thing, the case जो डॉक्टर राजू ने आपको बता ही दिया है regarding the possible anaphylactic reaction, तो उसके बाद करते ही next दिन on 5th को we had already reported there is something called as a pharmacovigilance department, जहाँ पे हम लोग जितना भी adverse drug reaction या complications या anaphylaxis हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट कर चुका है ड्यू प्रोसेस। एंड वो सेम बैच का जो मेडिसिन है, मेडिसिन का एक बैच में आता है, वही मेडिसिन को सेम बैच वाला हम लोग को वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड द फार्मेसी जहाँ से लिया है टू बेसिकली stop issuing, seal it and then hand it over to the CMS office ताकि we can do the further investigations. And moreover from what I hear, वही दिन ऑपरेशन में हमारे तो दिन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, अराउंड आई थिंक दैट डे वी डिड अराउंड 12 ऑपरेशंस दैट डे, एंड ये वाला ऑपरेशन वाज द 6th केस जिसमें वही सेम मेडिसिन को दिया गया था, 6th केस था। तो उसके पहले 5 केस को भी वी हैड गिवन द सेम इंजेक्शन ट्रानेक्सामिक एसिड व्हिच इज गिवन routinely used very often by Department of Surgery as well as the Department of Gynecologist. तो therefore this like जैसा कि हमने I reiterate again 5 केसेस ये केस का पहले सेम ड्रग को हम लोग दे चुका था। अनफॉर्चुनेटली द 6th केस में ये रिएक्शन हुआ है, लेकिन आफ्टर दैट वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट बैच एंड वी हैव सील्ड द ड्रग्स। कितना लोगों को चोट लगा का घटना? Yes, now it's okay. It's okay. Now coming to the that was the background. Now coming to what happened yesterday. So yesterday there was a very deeply anguishing event. I was तो ठीक है, हम अपने ऑफिस में था, ये सामने में ही है DMS का ऑफिस और आगे में CMS ऑफिस है। लकीली अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे CMS ऑफिस में हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे CMS साहब और OC ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी नाहरलगुन पुलिस थाना भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अराउंड 10:30 ना 11 o'clock, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइम, हम लोग को वहाँ से फ्रैंटिकली एक नर्स ने कॉल आया कि वहाँ में एक वार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वी ऑल रन डाउन। बाय द टाइम इंसिडेंट हो चुका था, लेकिन OC साहब एंड हिज टीम वर ऑलरेडी एट द स्पॉट एंड इमीडिएटली द असाइलेंट was apprehended within 5 or 10 minutes of the incident. तो ऑन इंक्वायरी हम लोग अपना डॉक्टर को पूछा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तब बताया है कि हमारा जैसा कि पहले भी हम बोल चुका है, एक सीनियर रेसिडेंट और एक जूनियर रेसिडेंट वेर असॉल्टेड। एक जूनियर रेसिडेंट DNB का डिप्लोमेट जो DNB जो रेसिडेंसी कर रहा है, वो अलग पेशेंट के लिए, वो ये पेशेंट के साथ रिलेटेड भी नहीं है, कभी उसको पेशेंट को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी अलग है। तो वो जाके अपना कोई पेशेंट वो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स का JR है। ये इंसिडेंट हुआ पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड ना, बच्चा लोग जो देखते हैं, ये इंसिडेंट सर्जरी में हुआ है। तो चाइल्ड्स डिपार्टमेंट का वो एक JR अपना पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे गया है वार्ड में,
वार्ड में जाके पेशेंट को देख के हाथ धोने के लिए निकला है, वो हमें देख के तब पीछे से आके कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर with whom he had absolutely no interaction, whom he doesn't know at all, वो आके पीछे से दुमदाम मतलब एक बड़ा रोड से, आपने अगर देखा है तो फेसबुक सोशल मीडिया में भी देखा होगा, इतना पीता है कि वो रोड बेंड होने तक पीता है। तब पीते समय हमारे सीनियर रेसिडेंट है, वो हमारे ही लोकल है, निशी ही डॉक्टर ही है, वो सीनियर रेसिडेंट है। सीनियर रेसिडेंट यानी कि जो एमडी खत्म करने के बाद जूनियर रेसिडेंट जो है स्पेशलिस्ट करने वाले, सीनियर रेसिडेंट मतलब स्पेशलिस्ट जो खत्म किया हुआ है। तो जो सीनियर रेसिडेंट उसको देख के वो बचाने के लिए गया है, तो वो रोड का जो शार्प एज है ना, उसने उसको वेरी, आपने फेसबुक में देखा ही होगा या दूसरा सोशल मीडिया में देखा ही होगा, वेरी डीप लैसरेशन उसका फोरआर्म में मिला है। उसके बाद जो बताया गया है वो भी भाग गया है। तब भी इट सीम्स वो तो नीचे में गिरा दिया, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली मारते जा रहा था। बाय दैट टाइम आई थिंक हम लोग का लकीली, जैसा कि हम बोला, ओसी और वो था, वो लोग आके हम लोग उसको डिफ्यूज़ कर सका है। बट बिफोर डिफ्यूजिंग ऑलरेडी ग्रीवियस इंजरी तो कर चुका था। डॉक्टर ताम साहब जो जामा सीनियर रेसिडेंट का तो डीप लैसरेशन देखा ही है। इट टुक अराउंड मोर देन 10 to 15 स्टिचेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी जो हमारे जेआर का हुआ है, जो बाहर तेलंगाना से है। बेचारा पेरेंट्स को अभी हम लोग कैसा बताएंगे कि अपना बच्चा वो लोग हम लोग का अंडर में बेचता है, टू गिव देम एजुकेशन अंडर आवर प्रोटेक्शन, लेकिन उसका इतना तक मारा है कि हड्डी तक तुता दिया है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवेंट फॉर अस नाउ कि वो पेरेंट बाहर से जो तेलंगाना इतना दूर से आया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वाला साइड ऑफ द स्टोरी को भी आप थोड़ा ह्यूमेन टच से लेके आप इसको मतलब पब्लिक को पहुंचाना चाहिए। ये जो वेपन है वो कहाँ बाहर से लेके आए थे network से? फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, उसका जो इंक्वायरी जो हम लोग ने थोड़ा मोड़ा इंटरनल इंक्वायरी किया है, वो वेपन बाहर से नहीं आया है, वो वेपन अंदर का ही था। हम लोग का जो बेड नहीं होता, मैट्रेस जो पेशेंट का बेड होता है, उसमें नीचे में एक रोड होता है, वो कहीं पे रखा हुआ था या लाइंग था, तो उसको लेके मारा है। दैट इज इट सीम्स लाइक दैट। सो ये कि बाहर से लाया वाला वेपन नहीं है। सर और क्वेश्चन रहेगा कि अभी सर्जरी वाला सर आपने बोला कि स्टेबल है पेशेंट का ना अभी कंडीशन, रिकवरिंग उसमें है, स्टिल लेकिन इन हाँ, रिकवरिंग तो मोड। कल उनका पेरेंट्स की तरफ से हमें फोन कॉल आया था, दे वर सपोज टू गिव ब्रीथिंग लास्ट नाइट, तो आया भी था, बाद में कुछ कारण से उन्होंने वो कर दिया, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि कोमा में नहीं। तो आप क्या बताना हाँ हाँ, चाहिए कितना हद तक सही तो है? ऐसा है, दैट्स व्हाई मतलब that अच्छा हुआ आपने पूछा। तो I forgot to add something. तो yesterday we came, और yesterday फिर हमने आईसीयू में, एक्चुअली वी सोच रहे थे कि हम आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे उसको, ताकि एक ऐसा भी होता है कि आईसीयू में जब आप रहते हैं, और आई थिंक कोविड के टाइम पे सबको पता होगा रूम पे रहना क्या होता है। तो कोविड, अरे आईसीयू का भी एक ऐसा रहता है जिसको हम आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, आप एक बंद कमरे में रहोगे, ना धूप ना रोशनी ना क्या, बस वही लाइट और वही। आईसीयू में क्या है, तो पेशेंट सब सीरियस रहता है, पाइप लगा हुआ ही रहता है, वेंटिलेटर में रहता है, साइड का कब क्या हो जाए पता नहीं रहता। तो जिसकी वजह से आईसीयू साइकोसिस रहता है, एक दिमाग में बना रहता है क्या अभी ठीक नहीं होगा। तो उसकी वजह से ये स्टडी, इसलिए हम गए, तो मेरे साथ मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी गए, हमारे एचओडी सर के साथ भी गए। तो जाकर हम सोचे कि चलो थोड़ा आईसीयू से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल कर थोड़ा हवा खाया, किसी से मिलेगा, घुल मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने अटेंडेंस से बात किया, तो उनको क्या लगा कि मतलब रिगार्डिंग इन रिलेशन विद द यस्टरडेज इंसिडेंट, कि हम उसको आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं। हमने उनको समझाया कि ऐसे बात नहीं है, अब जो हो गया हो गया, अब उसको लेकर आप आपके पेशेंट पे हम क्यों ये उठाएं, हम भी तो चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए, घर जाओ, हमारा भी तो हल्का होगा ना। तो वही सोचकर हम सोचे बाहर जाकर थोड़ा ये आईसीयू से निकालने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल वीकनेस तो है थोड़ा, बट लेकिन पेशेंट रिकवरिंग है। तो
बाकी जो जैसे पहले बताया कुछ कुछ टेस्ट है जिसको अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट अच्छे से रिकवर हो, तो इसलिए हम थोड़ा बाहर केबिन में शिफ्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, बट पेशेंट पार्टी रिलक्टेंट है, सो अभी तक हमने नहीं किया। सर मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे कि हमने कल देखा था प्रेस ब्रीफिंग में ओवल निशी एसोसिएशन के प्रेस ब्रीफिंग दिखा था, उन्होंने उसमें प्रेसिडेंट सर ने कहा था कि उसको किसी पेशेंट का फैमिली से बताया गया, वो पेशेंट का तरफ से बताया गया कि उसका भी एक ऑपरेशन यहाँ किया हुआ था, वो ऑपरेशन के चलते जब ऑपरेशन का टाइम पे उसका लोअर बॉडी पार्ट में जब आपको पैरालाइज कुछ इंजेक्शन वगैरह देता है, उस टाइम पे वो पेशेंट ये सुन रहा था कि आपका जो ऑपरेशन के प्रोसेस में किसी शायद अंदर ट्रेनी स्टूडेंट होगा, इसको काट के देखता है, वो पूरा सुन रहा था। तो अब ये जो कहानी है अभी पब्लिक में भी बहुत कंफ्यूज, बहुत डर पैदा हो रहे हैं, तो इसका कितना हद तक सच है? अगर आप अंदर ट्रेनी वो लास्ट जिंदा अगर किसी पेशेंट पे से कर रहे हैं, तो ये आपका इथिक्स से बाहर है कि नहीं, मतलब ये हम जानना चाहते हैं, पब्लिक को भी बहुत कंफ्यूज है। Do you want to answer? Do you want to answer? Yes. You want to answer? I can. Yeah. Otherwise, I'll distinguish. यूजुअली इंटर्न्स को हम लोग ऑपरेशन करने नहीं देते, हमेशा सीनियर सर्जन ही करते हैं। हो सकता है जूनियर सर्जन हो या वेरी सीनियर सर्जन हो, प्रोफेसर हो, बट वी नेवर अलाउ द इंटर्न्स टू ऑपरेट। इंटर्न को ये गलत है, हम भी सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, बट ये गलत है। कभी हम लोग इंटर्न को ऑपरेशन करने नहीं देते, ये एथिक्स के बाहर है। ओके, वो फुल प्लेस डॉक्टर बन जाएगा, फिर वो स्पेशलाइजेशन करेगा तब अलाउड करते हैं। उसका आपको एडिंग टू योर क्वेश्चन, आई बिलीव कि ये सिचुएशन ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास, जैसा कि हमारे रोनिया सर ने बोला, असिस्टेंट्स होता है, सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, उसके बाद द रेसिडेंट्स, नो, ठीक है। तो उसमें जूनियर कंसल्टेंट जो है वो बोला होगा कि हमने शुरू कर दे, उसको शायद आपने वो मीडिया वाले नहीं, सॉरी, द पर्सन जो वो था वो मिसकंस्ट्रू किया होगा, मिस इंटरप्रेट किया होगा। इट्स वेरी अनलाइकली कि हम लोग ने जैसा कि DMS नंबर 2 ने आपको क्लियरली बताया गया है, इंटर्न्स और ट्रेनीज को तो हम लोग किसी को डायरेक्टली ऑपरेट तो हम लोग करने नहीं देता है, वेरी क्लियर। इंजेक्शन का मेंशन आपने किया था, अगर सपोज टू आस्क एक क्वेश्चन, तो पर्टिकुलरली एज अ लेमैन हम लोगों को भी पता नहीं, आप लोग एज अ डॉक्टर आपको पता हो, तो इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए ना, एग्जैक्टली क्या होता है। Okay, so regarding that, I will just give you why indication I'll just explain, and rest of the medication part, दवाई का बाकी पार्ट मैडम बोल देंगे। हाँ, तो मैं दवाई के बारे में बताता हूँ कि हमने क्यों इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन तो ट्रेनेक्सामिक एसिड क्या होता है कि वो जब हम इंजेक्शन देते हैं तो कुछ कभी कुछ पार्ट्स ऐसे रह जाते हैं जिसको हम पूरी तरह सिलाई नहीं कर पाते, तो ऐसे कुछ पार्ट्स है, ऊज बोलते हैं जिसको, थोड़ा दबा के रखा फिर जो थोड़ा सा ब्लड निकलता है, तो उस पार्ट में हम क्या करते हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा प्रोटोकॉल और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी, तो ऐसे है कि जब अगर हम इंजेक्शन को कंटिन्यूसली देने से तो हम डोज कम करते हैं, लेकिन अगर हम वन स्टेट दे रहे हैं तो विदिन 8 आवर्स, ट्रॉमा का भी है नियम है, ATLS जो होता है, विदिन 8 आवर्स आप ट्रेनोस्टेट काम आता है। तो उस पेशेंट का भी ऐसा है कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम स्टेट देना था एक बात है। तो ऐसे है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पाइल्स जो होता है, तो कमिंग टू दिस पेशेंट, टू दैट पेशेंट, तो उसका भी ऐसा ही था कि बाहर से दिखता छोटा है, क्योंकि जो हम एनल स्फिंक्टर बोलता है, जहाँ से हम हर चीज़ को कंट्रोल करता है, कब जाना है कब नहीं जाना है, तो उस चीज़ को क्या मसल कंटेन करता रहता है। लो, जब हम स्पाइनल देते हैं, स्पाइनल देने से क्या होता है, सब रिलैक्स हो जाता है, आपका सब ब्लैडर से सब रिलैक्स हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ वो चीज़ भी रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होने से क्या होता है, कभी कभी अंदर हिडन रहता है, तो हिडन रहने से फिर बल्ज होकर बाहर आता है। तो उनका ऐसा था कि थोड़ा सा था, बाहर से दिखने में छोटा था, लेकिन जब एनेस्थीसिया रिलैक्स हो जाता तब थोड़ा ज़्यादा बल्ज है। तो रिगार्डिंग दैट, तो हमने क्या किया कि स्टेट एक 1 ग्राम स्टेट ऑर्डर देते, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू करना है। तो रिगार्डिंग थोड़ा सा यूज हो सकता है, और वैसे भी उसे उस ऑपरेशन में करने के बाद थोड़ा सा कुछ कॉटन वॉटन लगा कर देते हैं कंप्रेशन करने। तो रिगार्डिंग दैट तो हमने इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड लिया। तो जहाँ हमें लगता है कि मतलब थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ हम इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड
क्योंकि उन लोगों Now, ने क्या था वो इंजेक्शन के बाद में आपने किया उसको सारी जल्दी करना इसलिए नहीं, regarding this one, just 1 minute. Regarding this anaphylaxis तो हो सकता है, but then हमारे पास the pharmacovigilance officer है जो ये सब ADR भी she is a very senior basically pharmacist. She has done her masters MSc in pharmacy in the MPharm master in pharmacology of pharmacy. So therefore ये हम लोग का साथ attached ही है. She is the pharmacovigilance officer who will comment on the ADR. ADR यानी कि adverse drug reaction, यानी कि जो भी complications ड्रग का वजह से होता है. सो नबम यही आपको कुछ ये है तो आप प्लीज बता लीजिए. लिखा यहाँ बताओ. Can I change that same? Very good morning, media fraternity and everyone. I'm नवम याहिंग. मेरा नाम है नवम याहिंग और हम फार्मेसी प्रोफेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और मैंने एमफार्म इन फार्माकोलॉजी एट ऑटोजी सार हैज बीन टोल्ड और इंटरिम्स आई एम वर्किंग एज ए डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया AMC एडवांस ड्रग्स रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग सेंटर. तो roles and responsibility of the ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग सेंटर में फार्माकोविजिलेंस का क्या है, मैं थोड़ा सा आपका जरिए मैं मैसेज पास करना चाहती हूँ. At the very beginning, 4th of September this month, when this incident occurred, जब ये रिएक्शन जो occur हुआ था, डॉक्टर जारजे सर्जन डिपार्टमेंट जो हमको मैसेज कॉल करके हमको रिपोर्ट किया था और टेक्स्ट भी किया था कि मैडम ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, आप कलेक्ट कर लो बोल के. तो एट द मोमेंट हम लोग का डिपार्टमेंट से टीम जाके उसको कलेक्ट किया और हम लोग रिपोर्टिंग भी कर दिया है. और ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है हम आपको थोड़ा सा बताएगा. ये रिएक्शन जो हम लोग क्या क्या चीज़ को रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो क्या होता है. रिएक्शन जो एक कि एडवर्स रिएक्शन जो है कि आप जो भी मेडिसिन लेता है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल आपको आप हेडेक के लिए लेता है या फिर नहीं तो फीवर के लिए लेता है, लेकिन उसको ट्रीट नहीं करके जो डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता है. फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल को लेने का बाद आपका पूरा बॉडी स्वेलिंग हो गया और आपका आई विजन पावर जो लॉस हो गया या फिर आपको पूरा इचिंग रसेस पूरा खुजली बदन लाल लाल हो गया, इसको बोलता है ड्रग्स रिएक्शन ना. तो ड्रग्स रिएक्शन क्या चीज़ है, उसको वो किसको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. तो क्या चीज़ को हमको रिपोर्ट करना है हम आपको थोड़ा बताएगा उसको. और मैं ये आपका मीडिया का जरिए मैं जितने भी हम जो मेरा वॉइस को मीडिया ब्रीफिंग को सुन रहा है, मेरा हेल्थ केयर प्रोफेशन जितने भी अभी स्टेट में है, हमारा फार्मासिस्ट हो, नर्सेस हो, लैब टेक्नीशियन हो और जितने भी डॉक्टर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशन, आप लोगों से मैं इसका जरिए मैं आप लोग को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ. जो भी रिलेटेड रिपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन लाइक नॉन अननोन सीरियस नॉन सीरियस लेवल एंड नॉन नेगेटिव. नॉन क्या बोलता है, ऑलरेडी हमको पता है लेवल में. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल में फॉर एग्जांपल लिख के रखा है ऑलरेडी सैंपल में कि उसको वार्निंग बोलता है. वार्निंग आप लोग देखा होगा कि जब आप मेडिसिन से और जब आप ड्रग स्टोर से जब परचेस करते हैं उस पर रेड कलर का एक वार्निंग लिख के रखा होता है ना, उस पर लिखा होता है कि आप ये मेडिसिन को खाने से हो सकता है बोलते हैं ना. तो उसको बोलता है नॉन. अननोन बोलता है, उस पर लिख के नहीं रखा हुआ होता है, उसको अननोन बोलता है. आप खाने का बाद उस पर लिख के नहीं रखा है, आपको ओकर हो गया, उसको बोलता है नॉन. और सीरियस एग्जांपल बोलता है कि आपको वो मेडिसिन को लेने का बाद में आपको टोटली आपका आई पावर जो आप लॉस हो गया और आपको लाइफ टाइम वो वापस नहीं आएगा और आपका किडनी फेलियर हो गया और पेशेंट जो डेथ हो गया, उसको बोलता है सीरियस केसेस. और नॉन सीरियस केसेस जो क्या है, आपको थोड़ा सा बस इचिंग हुआ है, प्रोसेस हुआ है ना, थोड़ा सा उसको खाने का बाद में और हमको थोड़ा सा नौजा वोमिटिंग होता है, उसको बोलते हैं हम नॉन सीरियस. और ये सबको हमको रिपोर्टिंग करना है. और ऐसा है कि हम जो पब्लिक पेशेंट सोचते हैं कि हम जो अपना सेल्फ मेडिकेशन जो फार्मासिस्ट से खरीदता है और फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक जो हम लगाता है उसको रिएक्शन होने से हम रिपोर्टिंग नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है, उसको भी रिपोर्टिंग करना. बिकॉज वी डोंट नो ना
उस पे आपको मैन्युफैक्चर में भी एडल्ट्रेट हो सकता है, हमको पता नहीं है ना, मॉलिक्यूल्स में भी या स्पूरस मेडिसिन हो सकता है, जो भी हो सकता है उसको रिपोर्टिंग करना है। तो हम सोचता है कि हम पेशेंट जो सोचता है कि ना रिपोर्ट नहीं करना है ओके, तो जो क्या चीज़ हमको रिपोर्टिंग करना है उसको हम आपको बताया है। तो आपका एक रिपोर्टिंग का वजह से बहुत सारा पेशेंट जो बच सकता है। तो ये वेरी इंसिडेंट जो 4 तारीख को हुआ है उसका केसेस में हमको डॉक्टर जारदे सर्जन डिपार्टमेंट से कॉल आया था, और हमको वो ड्रग्स को भी मेडिसिन को भी हमको शेयर किया था। तो हम लोग तुरंत उस पर एक्ट किया और हम लोग रिपोर्टिंग किया। और हम लोग का एएमसी में हम लोग का एक प्रोसेस होता है कि हम लोग का एक अपना बीजी फ्लो होता है एएमसी में, एडवांस ड्रग्स, ये स्टेट में एएमसी एडवांस ड्रग्स रिएक्शन रिपोर्टिंग सेंटर ये एक ही है होल स्टेट में, इसको पब्लिक होता है अवेयरनेस नहीं है क्या। और ये हम लोग जो है दिल्ली से WHO से हम लोग लिंक है। तो हम लोग का क्या है एक बीजी फ्लो होता है, बीजी फ्लो, वो बीजी फ्लो वेबसाइट जो है हम लोग का उस पर पासवर्ड होता है, ईमेल एड्रेस होता है, और इसको हम लोग किसी को भी शेयर नहीं करता है। और इस ये जो हम लोग का सिक्योर ना, हम लोग का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग होता है। हम लोग उसको वो इंसान पर्सन जो जान सकता है कि ओनली द पर्सन हु इज ऑथोराइज टू ऑपरेट सच ए पोस्ट और चेयर ना, वो कंप्यूटर को जस्ट जो भी उस पे डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया है वो ही इंसान जो जैसे हम यहाँ में हम रिपोर्ट करता है, तो हम ही आपका रिपोर्ट को जो केसेस रिएक्शन हुआ है वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम लोग का बीजी फ्लो में जितना होता है हम उसको रिपोर्ट कर देता है, तो उसको हम लोग फर्दर दिल्ली में भेज देता है। दिल्ली में हम लोग का एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वो जो ऑल इंडिया का जितने भी रिपोर्ट है हम लोग का दिल्ली में जाता है। तो उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी होता है। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी क्या होता है, जैसे कि सीरियस, सीवियर और रियर फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे न्यूमोस्लाइड और बेन ड्रग्स है। फॉर एग्जाम्पल हम जो न्यूमोस्लाइड खाया, खा के हम पेशेंट जो डायरेक्ट लिवर डैमेज हो गया और प्रोलॉन्ग मेडिकल हॉस्पिटलाइज है, तो वो केसेस को क्या करेंगे, हम लोग उसे भेज देता। तो ऐसा केसेस को इन लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी तो वो लोग रिसर्च करता है, उस पर डिस्कस करता है कि इसको हम लोग फर्दर रिसर्च के लिए स्टेप लेना है क्या। तो क्या करते हैं इन लोग जो उसको WHO भेज देता है। हम लोग का उधर हेड क्वार्टर है उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर में। तो WHO में इन लोग रिसर्च करके एक पीरियोडिकली 6 मंथ में हम लोग को एक न्यूज़ लेटर पब्लिश होता है। तो उस पर वन इंडिकेशन देता है कि ये साल में ये मेडिसिन को अप्रूव किया है, नया मेडिसिन हम लोग का इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और ये मेडिसिन को हम लोग इसको वार्निंग दिया है, इसको सच केसेस में ये डिपार्टमेंट नहीं देना है ओके। हम लोग ऐसा ये करता रोल करता है, हम लोग का रोल है ये जो ADR का सेंटर में। तो ऑलरेडी ये मेडिसिन ये जो रिएक्शन है रियर केसेस है ना, बहुत सी बार ऐसा बहुत सारा को देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। तो इसको हम लोग स्टडी केसेस के लिए हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो हम लोग ईमेल भी किया है हम लोग का हेड ऑफ द अथॉरिटी को, हम लोग का यहाँ में ऐसा रियर इतना साल में से ये रियर और सीवियर और सीरियस केसेस है करके, तो फर्दर इन लोग हम लोग का हायर अथॉरिटी लोग अभी इसको रिसर्च पर्पस में और वो लोग की स्टेप छोड़ेगा। आप लोग यहाँ टेस्ट करते हैं क्या? अभी अभी तक जो आप लोग आपने बता रहे हैं आप लोग तक ही सीमित है, आप लोग भी कुछ टेस्ट करते हैं क्योंकि आपने बताया कि स्टेट का नॉन ड्रग टेस्ट करता है बोलते आपके पास में, तो आपके पास फैसिलिटीज है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? थैंक यू सो मच सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हमारा फार्माको विजिलेंस एडवांस ड्रग्स रिएक्शन रिपोर्टिंग सेंटर जो हम लोग टेस्टिंग को नहीं करते हैं, हम लोग जो रिपोर्टिंग, इसीलिए हम लोग जो है क्या है, हम लोग का मेन एम है कि हम लोग का मोटो है कि टू सेव कर द पेशेंट, पब्लिक एंड इन हेल्थ केयर सेक्टर। इसीलिए हम लोग जब भी मेडिसिन को हम लोग रिपोर्ट करने से हम लोग उसका बैच नंबर को लेते हैं, मैन्युफैक्चरर को लेते हैं, मैन्युफैक्चर लाइसेंस नंबर को लेते हैं, एक्सपायरी डेट को, मैन्युफैक्चर लाइसेंस नंबर, बैच नंबर सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके हम लोग उसको हम लोग रिसर्च करते हैं। और सब टेस्टिंग जो है ये एक जो ड्रग्स कंट्रोलर का वो पार्ट है। तो इसको अभी हम जो सुबह हम ड्रग्स कंट्रोलर टीम को, ड्रग्स इंस्पेक्टर को सर हम इन्फॉर्म कर दिया, और हम जो फार्मेसी मैडम मेरा हम वो लंबा प्रोसेस को हम नहीं ले रहे हैं, हम सीधा पूछ रहे हैं कि आप जैसे ड्रग इंस्पेक्टर को आपने क्या बोला, तो आपका पास कोई फैसिलिटीज है क्या टेस्ट करने वो का? बताएगा ना आप लोग टेस्ट करते हैं क्या? यदि करते हैं तो आप लोगों ने कोशिश किया था उसको टेस्ट करने के लिए, ना खाली वेबसाइट में अपलोड कर दिया जो आपने जो वेबसाइट जो बताया? हाँ सर, हाँ
एज ए फार्माकोविजिलेंस एडीआर सेंटर में सर टेस्ट करने के लिए हम लोग को वो सुविधा नहीं है, हम लोग का पास ऐसा वो नहीं है, ऑथोराइज नहीं है। लेकिन ये जो ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट का ड्रग्स इंस्पेक्टर, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा रिएक्शन हुआ है, आप सैंपल कलेक्ट करो तो बोलते। और सर थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ को बताया। और आपका जरिए में ये भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग जो है मेडिसिन में भी बहुत वर्क करना है ना, कभी कभार एक मॉलिक्यूल जो हम सेव करने लायक को सेव बचाने के लिए लेता है वो ही हमारा जान ले लेता है। तो हम लोग का स्टेट में फिलहाल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है, उसको वो ये सैंपल को भी लेके जाएगा, उसको कलकत्ता भेजेगा, इधर गुवाहाटी भेजेगा, वापस आते आते शायद 6 महीना लगेगा। तो इसीलिए हम लोग का स्टेट में एक ड्रग्स टेस्टिंग सेटअप भी होना चाहिए। हम आपका जरिए ये बोलता है क्योंकि, और मैं एक फार्मेसी ऑल अरुणाचल का फार्मेसी एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट हूँ। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये भी अरुणाचल को मैं ये भी हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड करता है कि रिसेंटली एक ऑर्डर निकला है सेक्शन 32 एक 1948 का फार्मेसी एक्ट में। तो वो जो है सर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, शायद अभी मेडिसिन में भी क्वालिटी आएंगे तो हमारा पब्लिक जो है मेडिसिन में भी हम लोग का बदन को हेजर्ड करने, हार्म करने के लिए ना, डिस्ट्रॉय करने के लिए 99% जो रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग मेडिसिन में भी फोकस करना है। तो 99% in the developing country they are admitting in the hospital, they are in bed just because of adverse drugs reaction होता है। तो हम लोग का यहाँ में ये जो यहाँ इसका बात हो रहा है ना, ट्रेन का बेस उसको लेकर बात कर रहे हैं। क्योंकि आप क्योंकि इसमें ऐसा सवाल है जो ड्रग रिएक्शन हुआ है बोल के जैसे सर ने बताया था, तो एज अ स्पेशलिस्ट आप भी मानेंगे कि जो इंजेक्शन हुआ था तो कभी कभार इसमें रिएक्शन होता है, वो सीधा से जवाब दे दीजिए। हाँ सर, हाँ रिएक्शन होता है, इसीलिए सर हम लोग उसको रिपोर्टिंग कर दिया हायर ऑथोरिटी को, फर्दर उन लोग अभी तो इनिशिएट प्रोबेबली उसके रिपोर्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? उसको तो मैम दिल्ली में भेजेंगे, दिल्ली में भेज के स्क्रीनिंग कमेटी जो उसको रिसर्च करेंगे, फिर फर्दर WHO वहाँ से रिसर्च करके आएगा। फिर मेडिसिन मैम आप बोल रहे हैं कि भेजेंगे, आपके बोल रहे हैं कि भेज दिया। हाँ नहीं, हम मेरा तरफ से तो हम रिपोर्टिंग कर दिया। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द दिल्ली ना, दिल्ली मेरा स्क्रीनिंग कमेटी, उन लोग फिर फर्दर उधर में स्क्रीनिंग करेंगे। तो टेस्टिंग का मेथड जो है वो हम लोग का हाथ में नहीं है। हाँ टेस्टिंग का। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। Yes. सर जैसे कल आपका जो इंसिडेंट हुआ सर, Yes. उसको हम लोग भी तहे दिल से उसको हम कंडेम करता है जो Thank हुआ you, है आपके thank साथ। you. और अभी जो अटैक किया है वो अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन में है वो। तो ऐसे होने के बाद भी आप लोग जो है 48 आवर्स जो आप लोग ने ओपीडी जो बंद कर रहा है सर, तो ये अभी यहाँ में आपका जितना पब्लिक है इसमें, जैसे कि अरुणाचल स्टेट में जितना भी डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक है वो लोग अभी सफर हो रहा है सर, क्या ये कितना तक आप लोगों को ये जस्टिफाई है सर? ये कितना तक सही है? आप देखिए आपका एक जो इंसिडेंट जो क्या है, जो अटैक किया वो अभी पुलिस स्टेशन में, अभी लेट जो लॉ है वो अपना कौन कोर्स ऑफ एक्शन वो लोग तो अभी करेगा लॉ वाला। तो इसमें आप लोग 48 आवर्स का जो अभी आपको ओपीडी जो बंद कर रहा है, इसमें आपका जितना भी स्टेट में अभी जितना भी जो डॉक्टर्स है, अभी जहाँ में पेशेंट्स है, आज भी मैंने बासर पे भी मैं भी बासर से उसको देखा, एक बुरी औरत रो के आ रहा था कि उसको क्योंकि डॉक्टर अटेंड करने वाला नहीं, इस तरह का समस्या लोग हो रहा है सर। तो अभी जो जिसने कुछ किया नहीं सर, उन लोगों को सजा देना आप लोगों का, ये मैंने कितना हद तक सही है सर? हम समझता है ये पेशेंट का सेंटिमेंट और पब्लिक का सेंटिमेंट को हम समझता है। हम तो यहाँ पे आई एम हियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग तो कभी भी हॉस्पिटल बंद करो हम लोग तो कभी साथ में नहीं दिया है और देगा भी नहीं है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। बट दिस इज ये जो कंक्लूजन जो हुआ है, दैट इज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट सीम्स 4 एसोसिएशंस, डॉक्टर एफिलिएटेड एसोसिएशंस, ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन, APDA, IMA और ट्रेन्ड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये 4 एसोसिएशंस विच आर एफिलिएटेड टू हेल्थ केयर सिस्टम, वो लोग ने इंडिपेंडेंटली वो लोग डिसाइड किया है टू बेसिकली व्हेन देयर फ्रस्ट्रेशन पब्लिक लोग को जानने देने के लिए कि वी आर हर्ट। तो इसका बारे में आई थिंक दी bodies will be able to comment much better than I do, because as an administration we are not purview to the strike or the suspension of routine medical services. Adding to his question, हम लोग भी आप बोलने वाली थी जो कल हुआ है, it's like very unfortunate। Yes, thank you once again. क्योंकि आप इनका जब सवाल का आप जवाब दे रहे थे, एक क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ है कि क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं ट्रेंड्स का, तो एक एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है Yes, और Asma. CSS रूल के अंदर में भी आता है
वर्कर्स है उनके अगेंस्ट तो एक्शन भी लिया जाता लीगली अगर बात Yes. करें महिला पिता हाथ उठा रहे वो बात अलग है इसके ऊपर मैं क्या कहूँ इसका बेसिकली we have been informed by the faculty association कि only the routine services will be affected, suspended. The emergency services will be available and in fact will be strengthened so that during this 2 दिन का जो suspension है routine services का तो emergency services चलते ही रहेगा और शायद चलते रहेगा भी नहीं है हम लोग emergency department में मैन पावर को भी दूसरा जो clinical department से increase करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया, लोगों को भी शायद थोड़ा सा समझ गया होगा कि आप लोग भी दिखाना चाहते थे कि हम लोग बहुत हार्ट होते हैं, लेकिन जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ वो कितना हार्ट है कि नहीं? देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोन मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास एक ही मेडिकल कॉलेज है, वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर हैविंग अ ड्रीम्स इन अरुणाचल। थैंक यू। हम लोग काफी दुखी है, हम लोग ने पूरा अरुणाचल दुख है कि ये जो घटना हुआ कल जो बहुत एक दाग है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा बार बार कभी कभी हो जाता है, सेपा में भी हुआ था, पहले रामकृष्ण मिशन में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों में सेंसिटिविटी होना चाहिए, बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए क्योंकि आप हम लोगों का सेवा देते हैं, लेकिन आप फिर 24 घंटा 48 घंटा करेंगे तो कोई फिर और काफी लोगों को चोट लगेगा, काफी लोग बीमार और खतरनाक होते हैं, तो थोड़ा सा एज ए ह्यूमन बीइंग ठीक है, इसमें नहीं लगता है, आप इमरजेंसी सर्विस चला रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का कुछ छोटा मोटा होता है, शिकायत होता है, उससे आपका और वो झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आपने कुछ सोचा है क्यों ना, उस जनता को आप क्या बताएंगे, अरुणाचल का बाकी जनता जो आसाम से आता है, अरुणाचल से आते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका है, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द मीडिया एज वेल एज द पब्लिक, बट ये तो एसोसिएशन का डिसीजन है। Sir, तो I am not taking on the association because they are pressure groups in the organization. I am talking to you because you have told us you are an administrator. So as an administrator, I have made sure from our side, from my side, ki whatever you guys decide, but the essential and emergency services will and should not suffer. But दूसरा को तो हम जबरदस्ती तो हम अपना जो जब when they have come to a decision, it is very difficult for as an administrator, हम तो बीच में पिस जाते हैं, वहाँ से भी है, पब्लिक से भी, और यहाँ से भी पिस जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। सो I cannot force हमारे फैकल्टीज एसोसिएशन, वो लोग का दुख को भी हम समझना पड़ता है, वो लोग को भी हम फोर्स इन दिस सिचुएशन सर्कमस्टांस आई कैन नॉट फोर्स देम कि नहीं जैसा भी हो आना है, आने से हम वो करेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम एज अ ह्यूमन बीइंग। एट द सेम टाइम यस आई डू अग्री, आई हैव टू understand the sentiment of the public. Therefore, we have made sure, once again I reiterate, कि all essential and emergency services should and will be available to the public. Absolutely, all inpatients जो भी अंडर में हमारे केयर में ऑलरेडी आ चुका है before the commencement of the so-called suspension of work will be getting the best of care and facility to our skill and knowledge. मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा, कल शाम को भी आपके हॉस्पिटल से ही जो एडमिटेड पेशेंट का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनके तरफ से कॉल आया था Okay. कि डॉक्टर लोग नहीं आ रहे, सवेरे से नहीं आए, पेट डाउन किया, उनके अभी बुला रहे, तो उन लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोग नहीं देखेगा, आप लोग जो करने का लोग ऐसे ऐसे कुछ बात बोल रहे हैं। Yes, I understand. Yeah, the same complaint as a DMS हमको भी ये same आपको जैसा है, हमको तो बहुत बार आया है, but yesterday we regret to inform you, कल basically all the doctors were till 7 o'clock. We were all involved with the meeting and discussion, meeting with the Honorable Health Minister and the Health Secretary. But हमारे वहाँ पे नर्सिंग तो था, we were in contact with the nursing ward in charges की patient का बारे में. Yes, we could not attend physically till 7 o'clock. उसके बाद तो ये था कि after 7 o'clock our emergency started at around 10 o'clock. और लेकिन उसका पहले by 7 o'clock all the inpatients में तो हम डॉक्टर लोग को भी हम ये डायरेक्शन दे चुका था कि no patient who is admitted in our hospital should suffer. तो ये चीज़ that yes, I like I said, I regret and I am very sorry कि वो टाइम जिसमें वी वेयर एजिटेटेड एंड डॉक्टर्स लोग मीटिंग पे था, उस समय में शायद वो लोग वार्ड में नहीं जाके नहीं देखा होगा, बट आई एश्योर यू आई हैव टॉक टू देम एंड वो लोग बताया गया है कि दे वर इन टच विद द वार्ड इंचार्जेस एंड देयर वाज नो डिफिशिएंसी इन द केयर प्रोवाइडेड टू द इनपेशेंट्स। सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका डेटा क्या बताता है? बिंगिया घोड़ा वाला जो इंसिडेंट हुआ,
सभी पेशेंट का कहना फैमिली से कहना है कि ऐसा इंसिडेंट 40 इंसिडेंट ये ड्रीम्स का हिस्ट्री में हो चुका है, तो आपका जो फैक्ट्स क्या बताता है, डेटा क्या बताता है? आपका फैक्ट्स लकीली यस्टरडे ये वाला क्वेश्चन का किसी ने हमारे वो ये वाला रिसर्च करके बताया था। ये है कि इसका फैक्ट ये है कि बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल untruth है, because last since since the start of these medical colleges we have performed around 51 more than 51,000 deliveries. I'm not saying about CS, that includes CS. Okay, 21,000 उसमें से we have reported unfortunately 9 deaths. Unfortunately 9 deaths. We are deeply sorry. वो 9 deaths में से 6 deaths were due to COVID. So therefore, if you talk by document wise, we have only 3 deaths per se. So somebody saying कि 40 deaths, we have actually in fact कल हम लोग पुलिस के साथ interact भी किया है, DIG साहब भी था, SP साहब भी था। हम लोग ये बात हम लोग उसको पूछा भी था कि it seems पुलिस ने आप लोग ने बताया है कि 40 cases registered है। They vehemently denied and said कि no वो किया नहीं है, and then we had requested them to जो भी बोला है उसको retract करने के लिए from the police side, वो भी हम लोग को already हम लोग request किया गया है। So therefore, no, we are not agreeing with that data at all. Only like I said, 9 deaths of the 21,000 deliveries bar LSCS cesareans, 21,000 cesareans, 51,000 total deliveries. So therefore, उसमें से 9 deaths, of which 6 during COVID time due to COVID related mortality. Therefore, only 3 in the past 6 years. सर ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग आपने बताया था कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ बेड्स 500 है और मैन पावर कम है, तो उसको Yes. कट डाउन भी करने वाले हैं। Yes. बिफोर दैट सर हम ये जानना चाहेंगे कि एज एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग की तरफ से कंसर्न अथॉरिटीज को गवर्नमेंट लेवल में बात रखा गया था कि ऐड करना चाहिए हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि अभी कट डाउन करना भी, क्योंकि नो डाउट ड्रिंक्स काफ़ी सर्विस दे रहे हैं, कुछ बात रखा गया था वहाँ से रेस्पॉन्स है, ऐसा कुछ है क्या सर? Obviously ये तो ही ये तो obvious है. We have already up 10 times we have already asked for recruitment of the sanctioned post as well as creation of much more post. लेकिन ये सब details आप लोग को बोलने से I think it is not the appropriate platform for me to tell you. But yes, all the जो necessary जो हम लोग का sites जो government को जो मांगना है, we have already asked for it. And they said कि we will be hearing a good news very soon. That was the reply that we got yesterday.